Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to Social Studies class. In our today's Social Studies class, we are going to study a new chapter of history. Chapter number 3. The first farmers and settlers. Who were the first farmers and settlers? Right? Before starting with this chapter, we have to connect with the previous chapter. So let's recall about previous chapter of history, chapter 2. In the previous chapter, we studied about the hunters and gatherers. We know that in the prehistory, early humans were hunters and gatherers. They hunted the animals for meat and they gathered fruits, berries, and the vegetation which was available. They collected honey. Okay, so they were hunters and gatherers. They collected roots, right? So hunters gatherers से वो settlers कैसे बने? ठीक है, तो हमें पता है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी? नॉमैडिक लाइफस्टाइल थी. They did not stay at same place. They had to move from one place to another in search of resources like water, in search of water and the plants and trees. Okay, so they were hunters and gatherers. Then they also made stone tools. Okay, and the stone tools were of different types. Their characteristics and their specifications were different. So on the basis of the different stone tools, this period is divided into 3 parts. Stone Age is divided into Paleolithic Age, Old Stone Age, Mesolithic Age, Middle Stone Age and Neolithic Age, New Stone Age. तो हमने तीनों के बारे में पढ़ा था. We studied that early humans also discovered fire and they started cooking. Also we studied that the tools they made were used to cut, they were used to hunt, cut, scrap the meat of the animal. They also used to clear the forest and cut the trees, okay, with these tools. And as the time changed, these tools, the size of the tool, the specification of the tool also changed. They developed different tools, okay. They made fishing hooks as they started fishing, okay. In the Mesolithic age, when the planet started becoming warm, हमें पता है कि पहले प्लैनेट बहुत कोल्ड था आइस एज में और फिर जब प्लैनेट वार्म होने लगा तो आइस मेल्ट होने लगी और फिर उन्होंने जो फिशिंग हुक्स बनाए थे उससे वो फिशिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया. फिर हमने पढ़ा था नियोलिथिक एज के बारे में. नियोलिथिक एज ऐसा टाइम पीरियड था कि जहां पर उन्होंने फार्मिंग सीखा और फार्मिंग किया, राइट. So in this chapter that we are going to continue about the Neolithic age. Okay, so today we are going to cover the topics Neolithic age, beginning of settled life, important Neolithic sites in the Indian subcontinent. We will cover these topics in this chapter. Okay, तो पहला टॉपिक है Neolithic age. तो मैंने आपको बोला Neolithic age यानी न्यू स्टोन एज. नियोलिथिक एज में जो टूल्स है वो डिफरेंट तरीके के टूल्स उन्होंने बनाए हैं और उसका पर्पस भी डिफरेंट है, राइट. दे मेड द टूल्स फॉर हंटिंग, फॉर गैदरिंग, दे मेड द टूल्स फॉर फिशिंग, दे मेड द टूल्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. ओके, तो टूल्स में भी डिफरेंस आते रहे और वो हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यू उन्होंने रखा था, बट एडिशनली दे स्टार्टेड लर्निंग farming. Okay, they learned farming and they started agriculture. ठीक है, तो beginning of settled life यहीं से शुरू हुई कि जब उन्होंने फार्मिंग करना सीखा. पहले हमें पता है कि जब मेसोलिथिक एज थी तब प्लैनेट वार्म होने लगा और ग्रासलैंड्स बनने लगे. ओके, द लैंड, द सॉइल कवर्ड विथ ग्रास. ओके, एंड दिस रिजल्टेड इन the domestication of animals. Okay, animals है जो grass eating animals है उनकी population बढ़ गई. number of grass eating animals started increasing. Okay, तो हमें पता है कि settled life में इन लोगों ने stone tools बनाए,
फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया। एग्रीकल्चर में इन लोगों ने सीखा कि कैसे क्रॉप्स प्लांट्स उगाते हैं। ठीक है, वो कैसे सीखा कि ग्रासलैंड्स बने हुए थे, तो ग्रासलैंड्स और सॉइल पे कुछ सीड्स गिरे हुए थे और सीड्स है वो ग्रेजुअली वो स्प्राउट होने लगे। दे स्टार्टेड स्प्राउटिंग एंड दे सॉ दैट ओके लाइक दिस वे plants can be, crops can be grown. So this is a estimated theory. There are no evidence that how early humans started doing agriculture, how they learned. There is no perfect theory. Okay, तो उन्होंने agriculture किया। Domestication, they domesticated animals like cows, they domesticated bulls, horses, donkey, sheep, गोट, यानी उन्होंने ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जो ग्रास खाते हो। ओके, द एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड दे प्रोवाइड देम विथ मिल्क, मीट एंड लेबर। ठीक है, जैसे बुल और हॉर्स है वो लेबर वर्क करते थे फार्म्स में, और जो डोंकी है वो लोड कैरी करते थे, और काउ मिल्क सप्लाई, फॉर मिल्क सप्लाई they domesticated cow and goat, and also for the meat they domesticated goat, and for wool okay they domesticated sheep. तो अलग अलग पर्पस के लिए उन्होंने डोमेस्टिकेट इन एनिमल्स को किया। एंड दे ऑल्सो इन्वेंटेड व्हील। ओके, दे डिस्कवर्ड व्हील। तो ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि उन्होंने ग्रेन्स को क्रश करना भी शुरू कर दिया। तो दे क्रश्ड द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ द बिगर स्टोन्स। ओके, आज हम मोटर और पेसले यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से उन लोगों ने जो बड़े स्टोन्स है उसके मदद से उनको क्रश करना सीखा। ओके, तो ये सारी पॉइंट्स है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। फिर इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अभी वो फार्मिंग करते थे, वो हर्डिंग करते थे, वीविंग करते थे, पॉटरी, दे आल्सो डिड पॉटरी। तो हाउ इसके एविडेंस कैसे पता चलते हैं? हाउ वी केम टू नो? वी केम टू नो बिकॉज ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट दे एक्सकेवेटेड दिस नियोलिथिक साइट्स, और ऐसी काफी साइट्स है, इंपॉर्टेंट साइट्स है नियोलिथिक जो अपनी इंडिया में है। ओके, जो अपने इंडिया में भी ऐसी काफी नियोलिथिक साइट्स है। वो कौन सी है? मेहरगढ़ है जो कि पाकिस्तान में है अभी, बट प्रेजेंटली इट इज इन पाकिस्तान, बट एट दैट टाइम इट वाज इंक्लूडेड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फिर बुर्जा होम, ठीक है, बुर्जा होम है वहां पर कश्मीर साइड है। ओके, इट इज द प्रेजेंट कश्मीर। एंड हलूर में, ये तीनों प्लेसेस है, यहाँ पर उनको एविडेंस मिले हैं नियोलिथिक पीरियड के बारे में, और उन एविडेंसेस से हमें ये सारा पता चलता है कि स्टोन टूल्स कौन से उन्होंने बनाए, एग्रीकल्चर किया उन्होंने, डोमेस्टिकेशन किया, और व्हील की डिस्कवरी हुई, और काफी अर्दन पॉट्स भी मिले हैं। ये अर्दन पॉट्स ये लोग ग्रेन्स स्टोर करने के लिए, फूड कुक करने के लिए यूज करते थे। यूज्ड द अर्दन पॉट्स फॉर कुकिंग, स्टोरिंग एंड आल्सो फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये टॉपिक्स हम आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। वी विल स्टडी दिस टॉपिक्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Let's start chapter 3, the first farmers and settlers. So in the previous chapter we studied about nomadic lifestyle and hunters and gatherers, right? In this chapter we are going to study about the first farmers and the settlers. Let's warm up. You learnt in the previous chapter that early humans became settlers from hunters and gatherers. So in the previous chapter you learnt that they have now started to settle. Okay, so you have to discuss, you have to list out at least 3 characteristics. आपको minimum 3 characteristics लिखनी है hunter gatherers and settlers दोनों की 3 characteristics लिखनी है. You have to write about nomadic lifestyle and settled lifestyle. Okay, here in this image
you can see that the first image represents nomadic hunter-gatherer life and the second one represents the settled farmer, okay, settled life. So you have to list out at least 3 characteristics of each type of life. Moving forward to the chapter, okay, the first topic is the Neolithic age. In this topic we know that it is about the new stone age, okay. The new stone age is of great significance as this period marked widespread changes, okay. ये पीरियड बहुत important है क्योंकि इसी पीरियड में बहुत सारे changes हुए. This period was when human beings for the first time began to settle down and stopped being only hunter and gatherer. धीरे धीरे वो सेटल होने लगे और हंटिंग और गैदरिंग उन्होंने कम किया, ओके, और फिर स्टॉप कर दिया. So humans began to cultivate the land and they lived in one place for longer period of time in order to allow the crops to grow. तो क्रॉप्स ग्रो हो तब तक उन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ता था और इसी वजह से उनकी नोमैडिक लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं छूटने लगी. दे गेव अप नोमैडिक लाइफस्टाइल एंड स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड क्रिएटेड स्मॉल कम्युनिटीज, और उन्होंने छोटी छोटी अपनी कम्युनिटीज बना ली. दे ऑल्सो बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, वो अपने पास एनिमल्स को पालने लगे, ओके. दे domesticated animals like buffaloes, goats, sheep, horses, etc. to ensure the supply of milk, meat and labor. Beginning of settled life. Emergence of village communities. धीरे धीरे वो communities बनाते गए और ये मिलकर village बन गया, ओके. So emergence of village communities. As people began to settle down, small communities developed which began to live close to each other. Communities है वो एक दूसरे के बाजू में रहती थी, ओके, बहुत बाजू में रहती थी. They made mud houses and thatched roof to live in, ठीक है. तो उन्होंने mud houses बनाए और उन्होंने roofs बनाई, ओके, using bamboo and using the wood. They made huts, तो उन्होंने हट्स बनाए, झूपड़ी बनाई. सो दे मेड न्यू हाउसेस, ओके, टेम्पररी हाउसेस ऑफ मड एंड टैच्ड रूफ. दिस मीन्ड दैट पीपल हैड न्यू जॉब्स टू डू. इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को नया नया काम मिला, लोगों ने नया नया काम किया. एंड द लेबर बिकेम स्पेशलाइज्ड, और सब लोग जो काम वर्किंग फोर्स है वो ज़्यादा बेटर होती गई. People were given tasks on the basis of the skills they had. तो जो भी communities थी, जो भी ग्रुप था, उनमें से जो भी जिस टास्क को अच्छा करता हो, अच्छे से करता हो, उसको वो टास्क दिया जाता था, राइट. People were given tasks on the basis of their skill. उनकी जो स्किल होती थी उस हिसाब से उनको टास्क मिलता था. This also meant that various groups were emerging in society. और एक सोसाइटी बन रही थी, लोग आपस में कनेक्ट हो रहे थे. सो इट वॉज फॉर्मिंग अ सोसाइटी. सम पीपल वर्कड इन एरियाज लाइक फार्मिंग, वीविंग, हर्डिंग, while others were responsible for taking decisions regarding the village's overall well-being. ओके, सो कुछ लोग फार्मिंग कर रहे थे, फार्मिंग में हेल्पफुल बन रहे थे, कुछ लोग वीविंग कर रहे थे. सम वर हर्डिंग, हर्डिंग मीन्स एनिमल्स को ले जाकर ग्रेजिंग करवाना, ओके. सो सम वर हर्डिंग while others were responsible for taking decisions regarding the overall well-being. This was also the time that customs, ceremonies and other rituals started becoming more defined. और अपने अपने customs वहाँ पर form हुए. This was the time when customs, ceremonies and other rituals, रीति रिवाज, वो बनना शुरू हो गए. Stone tools of Neolithic age. This age saw the development of
न्यूअर एंड मोर एडवांस्ड स्टोन टूल्स। तो स्टोन टूल्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए और वो बहुत अच्छे बेटर बनते गए। ओके, स्टोन टूल्स वर न्यू एंड मोर एडवांस्ड एज पर द नीड। आप देख सकते हो ये सारे स्टोन टूल्स हैं वो नियोलिथिक पीरियड के हैं। So in this image also you can see the Neolithic stone tools that were made by the early humans, okay, at that time. While well polished sharp edged tools such as the axe made of stone and animal bones were used mainly for purposes of hunting and cutting, stones that were large and flat were used for crushing grains. तो आपको मैंने जो इमेज दिखाया उसमें भी आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा स्टोन था जो जिसके ऊपर थोड़े ग्रेन्स थे और उसको उसके साथ एक छोटा भी लंबा सा स्टोन था। ओके, सो द अर्ली ह्यूमंस नाउ स्टार्टेड making tools that were well polished and had sharp edges. They made axe, okay, that is used to cut the tree. They made spade that is used for tilling the soil, or that is used for cultivation. Okay, so they started making the tools according to their need from stones and animal bones. Now tools for tilling the soil were also found in the excavation. Tools, sickle, okay, what is sickle? Sickle is used to remove the weeds and sickle is semicircular in shape. You might have seen, okay, it looks like this. Okay, agriculture, okay, we know that now they are settling down, okay, because they are cultivating, right? So how agriculture? They started agriculture. As the ice age receded, means ice age was falling, declining, okay, as the ice age was getting over and the climate of earth was becoming warm, okay, climate was becoming warmer, there was an emergence of grasslands. तो grasslands develop हुई, warmer climates and fertile soil, ठीक है, climate warm हो गया है, warmer climate and fertile soils allowed the humans to practice agriculture. और इसी suitability के वजह से अब humans है वो agriculture कर सकते हैं. okay, the story of how humans learn to cultivate land is still unknown. तो कैसे वो फार्मिंग सीखे, कैसे उन्होंने कल्टीवेशन किया, हाउ दे स्टार्टेड फार्मिंग, ओके, कहाँ से सीखा है, उनको कैसे पता चला, दैट इज स्टिल अननोन. द मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेड स्टोरी, बट जो कॉमनली एक्सेप्टेड स्टोरी है वो ऐसी है कि सम सीड्स वर थ्रोन इनटू द ग्राउंड, कुछ सीड्स है वो गिर गए ग्राउंड पे, फ्रॉम विच प्लांट्स बिगेन टू स्प्राउट, और उसी से जो प्लांट है वो स्प्राउट होने लगे, यानी फूट के उगने लगे. दैट माइट बी सीन एज द बिगिनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ फार्मिंग. ठीक है, सीड्स गिर गए और फिर थोड़े डेज के बाद खुद ब खुद वहाँ पर सीड्स जो है जो स्प्राउट होके प्लांट उगने लगे. दैट माइट बी सीन एज द बिगिनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ फार्मिंग. तो इसी वजह से उनको पता चला फार्मिंग के बारे में, एंड दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ दिस आर्ट. And this made the people to settle down as the number of people were also increasing. Okay, number of people was also increasing. Hunting alone was not enough to feed everyone. तो hunting ही सिर्फ नहीं चलने वाला था. Okay, they needed some other source of food also because the number was increasing. Thus certain basic needs also acted as catalyst which led to the development of the practice of farming. ठीक है, तो increasing population की वजह से hunting से सिर्फ गुजारा नहीं हो सकता था, उनको farming भी करनी पड़ी. ओके, और यही एक रीज़न रहा होगा जो कैटलिस्ट रहा होगा. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट?
Catalyst means a factor or it means a factor that speeds up the process. Okay, so it might be a catalyst. Okay, catalyst यानी something that helps in speeding up a process. तो जो फार्मिंग की प्रोसेस है वो स्पीड अप हो गई, ज़्यादा स्प्रेड हो गई, ऑल बिकॉज ऑफ द रीजन दैट hunting was not alone enough. Thus, basic needs also acted as catalyst which led to the development of practice of farming. Wheat, barley, figs, oats and tall grasses were the first plants. ठीक है, पहले प्लांट्स कौन कौन से थे? व्हीट, बार्ली, फिग्स, ओट्स एंड टॉल ग्रासेस. पहले उन्होंने ये उगाए. ठीक है, पहले उन्होंने ये उगाए, पहले ये उगे थे. The grains were stored in large storage places called granaries. तो जो भी सरप्लस होता था, okay, whatever surplus or whatever is that used to be stored in granaries. तो जो grains है वो कहाँ पर स्टोर होते थे? एक रूम में, जिसको हम कहते हैं granaries. From being hunters gatherers, पीपल इन नियोलिथिक एज बिकेम प्रोड्यूसर्स. और ये अभी प्रोड्यूसर्स होने लगे क्योंकि ये खुद क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, एज वेल एज कंजर्वर्स ऑफ फूड. और ये लोग संभाल कर भी रखते थे, बचा कर भी रखते थे. सो दे वर सेविंग द फूड, सो दे बिकेम प्रोड्यूसर्स एंड कंजर्वर्स. एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, what we can say what were the evidence. okay, एविडेंस क्या है कि उन्होंने कब फार्मिंग स्टार्ट की और क्या क्या उन्होंने एग्रीकल्चर में क्या क्या क्रॉप्स उन्होंने उगाए, कौन से प्लांट्स उगाए. राइट, सो नियोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. कुछ ऐसी साइट्स है जो नियोलिथिक पीरियड की है, मतलब उस समय की है. और वो साइट्स कहाँ पर है? मेहरगढ़ इन पाकिस्तान. ठीक है, आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर मेहरगढ़ में ये साइट है. हियर वन कैन फाइंड साइंस ऑफ हर्डिंग ऑफ शिप, गोट एंड कैटल. ठीक है, जो शीप, गोट और कैटल को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था, तो उसके एविडेंस यहाँ पर मिलते हैं. एज वेल एज कल्टिवेशन ऑफ बार्ले एंड व्हीट. तो बार्ले और व्हीट के भी यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं. सिमिलर साइट्स ऑल्सो हैव बीन फाउंड इन लहुरा देवा इन उत्तर प्रदेश. अपने यूपी, अपने इंडिया में जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के लहुरा देवा साइट पर भी, और हलूर इन कर्नाटका, बुर्जा होम इन कश्मीर एंड अदर प्लेसेस. तो इंडिया, आज के प्रेजेंट इंडिया में एज वेल एज पाकिस्तान, प्रेजेंट पाकिस्तान में इसके एविडेंसेस मिले हैं. सो इन दिस इमेज यू कैन सी अर्ली ह्यूमन्स farming. okay, they are doing something in their farm, and you can also see the houses, okay, in the background. तो आप उनको जो कैसे घर बनाते थे, कैसे रहते थे, और उनकी एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, एक्टिविटी ऑफ प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर आप इस इमेज में देख सकते हो. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स started in Mesolithic period. Mesolithic period means middle stone age. ठीक है, मिडल स्टोन एज में ही डोमेस्टिकेशन उन्होंने करना शुरू किया था. एंड दिस प्रोसेस इन द नियोलिथिक पीरियड ऑल्सो कंटिन्यूड. एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, शीप, हॉर्सेस, बुल्स एंड गोट्स वर डोमेस्टिकेटेड. ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स उन्होंने पाले थे, कौन से उन्होंने रखे थे? दे डोमेस्टिकेटेड काउस, बफेलोज, शीप, हॉर्सेस, बुल्स एंड गोट्स. एनिमल्स लाइक हॉर्सेस helped to till the land. Animals like goats and sheep provided wool and meat. Cows and buffaloes provided milk, and donkeys transferred their heavy load from one place to another. Okay. Discovery of wheel, invention of wheel. Okay, the invention of wheel was a turning point. Okay, it was a remarkable thing, and it was a turning point in human history. There is no precise यानी exact
accurate. ठीक है, there is no precise exact data regarding the invention of the wheel. The earliest evidence of the usage of wheel has been traced to Mesopotamia. ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि व्हील यूज किया गया, ठीक है, वो कौन सी प्लेस थी? मेसोपोटामिया. ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि मेसोपोटामिया जो कि प्रेजेंट डे इराक में है, वहां पर ही फर्स्ट व्हील्स यूज हुए थे, वेयर इट वाज यूज्ड इन एंड अराउंड 3500 BCE. So what were the benefits or what changes were there because of wheel? Transportation. Okay, with the invention of wheel the life of human beings improved by leaps and bounds. ठीक है, तो इन्वेंशन, व्हील के इन्वेंशन की वजह से ह्यूमन लाइफ बहुत इम्प्रूव हो गई. ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकेम कन्वीनियंट. बहुत ईजी हो गया टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो गया. नेक्स्ट केम द इन्वेंशन ऑफ कार्ट्स एंड चैरियट्स. उसके बाद कार्ट्स उन्होंने बनाए और चैरियट्स बनाए, यानी कि ऐसे व्हील्स के ऊपर कार्ट रखकर और एनिमल के साथ उसको जॉइन कर उन्होंने चैरियट्स बनाए. ठीक है, उन्होंने जैसे हम प्रेजेंट डे में जिसको बुलक कार्ट और वीकेंड से बुलक कार्ट बोलते हैं और हम बोलते हैं कि हॉर्स कार्ट, तो वैसे उन्होंने पहले व्हील को इन्वेंट किया और व्हील इन्वेंशन के बाद उन्होंने कार्ट्स और चैरियट्स बनाए. So with the invention of wheel, the transport became very fast and very easy. Okay, transport of heavy load became very easy and it was done rapidly. Okay, and after the invention of wheel they also invented carts and chariots. Okay, chariots are attached to horse. Okay, the two wheels and the cart is attached to horse. Okay, so they also developed pottery. Okay, फिर उन्होंने pottery कैसे किया? With the coming of farming जैसे जैसे उन्होंने सीखा, they also developed the need to store the ग्रेन्स. तो ग्रेन्स जो वो प्रोड्यूस करते थे उनको फिर वो स्टोर करना ज़रूरी था, इसीलिए उन्होंने पॉटरी का इन्वेंशन भी किया. पॉट्स एंड अर्न्स. ठीक है, पॉट्स एंड अर्न्स वर नीडेड फॉर दिस. द पॉटर्स व्हील वॉज यूज टू मेक पॉट्स ऑफ वेरियस शेप्स. ठीक है, पॉटर्स व्हील है जो कुम्हार का जो होता है व्हील, उसमें उन्होंने उसके मदद से उन्होंने सारे पॉट्स बनाए. दिस पॉट्स वर मेड ऑफ वेरियस साइज, शेप एंड वेयर वाटर, ग्रेन्स, मिल्क एक्सेट्रा वर स्टोर्ड. तो जिसे स्टोर करने के लिए यूज होता था. अदर पॉट्स वर ऑल्सो यूज टू कुक फूड. कुकिंग के लिए भी यूज होता था. डेकोरेटिव पॉट्स वर यूज्ड. ओके, एंड डेकोरेटिव पॉट्स वर ऑल्सो found. Okay, decorative pots have also been excavated. तो उस साइड्स पे decorative pots भी मिले हैं, decorative pots from Neolithic site. So urns means the pots that are having long, okay, that are elongated. Okay, these are urns. This image of urns. Okay, in this image you can see urns. तो अर्न्स कैसे होते हैं? पॉट्स जैसे ही होते हैं, पर उनका शेप है वो लॉन्ग रहता है और उनका नेक है वो नैरो हो जाता है. ओके, ऐसे. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. एंड डेकोरेटिव पॉट्स एंड अर्न्स हैव ऑल्सो बीन एक्सकवेटेड. ओके, सो डेकोरेटिव पॉट्स एंड अर्न्स have also been excavated from the Neolithic sites. So lifestyle changed, right? So what was the change? Okay, so they had a new way of life. People planted seeds and noticed that it takes time to grow. ठीक है, लोगों ने सीड्स के बारे में उनको पता चला कि सीड्स उगने में उनको टाइम लगता है और उनको ध्यान रखना पड़ता है. ओके,
फिर क्या हुआ, दे स्टेड इन द सेम प्लेस, और इसी वजह से वो उसी प्लेस पे रुके थे, बहुत समय तक वो रुकते थे, एंड दिस मेड देम सेटलर्स. ओके, they looked after the plants, watering, weeding, driving away the animals and birds till the grains ripened. तो जब तक जो क्रॉप्स है वो मैच्योर हो जाए, जब तक क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाए और सीड्स राइप, ग्रेन्स राइप हो, तब तक उन्हें वहीं पर रहना पड़ता था, और वहाँ पर रहकर उन्हें पता था कि उनको ध्यान रखना पड़ता था. They had to give them water, they had to remove the weeds, and they have to protect the crops from animals and birds. Grains had to be stored for the food and seed. ओके, तो ग्रेन्स है उनको स्टोर भी करना पड़ता था. दे बिगेन मेकिंग क्ले पॉट्स एंड वोव बास्केट्स और डग पिट्स इन द ग्राउंड. ओके, तो ये एक नई लाइफस्टाइल उनकी बन चुकी थी. उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया था सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल. ओके, domestication was also helpful because it helped in carrying the loads, it helped in giving the milk, giving the wool, it helped in farming also. Okay, so they all started doing all these activities and their lifestyle changed. Some important Neolithic sites in Indian subcontinent. तो Neolithic period की sites है वो इंडिया में भी है. So let's have a look upon these sites. So the information about the Neolithic site is given in the case study. You have to read the case study. The first site is Mehergarh, ranging from the time period 7000 BCE to 2000 BCE. Means at this time period Mehergarh has the evidence of this time period when early humans did various activities. Okay, and the location of the Mehergarh is Pakistan, Baluchistan in Pakistan, on the west side of the Indus River. जो भी Indus River है उसके Indus River के west part में, west direction में बलूचिस्तान of पाकिस्तान के फीचर्स. तो इस प्लेस पे क्या क्या एविडेंस मिले हैं. ओके, एट दिस साइट ट्रेसेस ऑफ हर्डिंग एंड फार्मिंग. ओके, हर्डिंग और फार्मिंग के ट्रेसेस मिले हैं, और एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस मिले हैं. फिर यहाँ पर कैसे ये लोग का ट्रांजिशन हुआ. ठीक है, द ट्रांजिशन ऑल्सो, प्रूफ ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम गैदरर्स टू सेटलर्स भी यहाँ पर मिला है. फिर यहाँ पर फार्मिंग के एविडेंस मिले हैं. यहाँ पर क्या क्या उगाते थे, बार्ली, वीट और डेट, इनके एविडेंस मिले हैं. एंड डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंस मिले हैं. ओके, यहाँ के लोग, मेहरगढ़ के लोग, अर्ली ह्यूमंस क्या ग्रो करते थे, दे ग्रू बार्ली, वीट एंड डेट्स. और किनको पालते थे, दे डोमेस्टिकेटेड कैटल, शीप एंड गोट्स. Also the evidence of mud houses as their shelter also have been found. Okay, they lived in the houses near the area of cultivation. तो फार्म जो प्लेस होती है, लैंड होती है, उसके पास में ही वो रहते थे. Stones and bones were used for making tools. टूल्स भी ये लोग बना रहे थे, उन टूल्स के भी एविडेंस मिले हैं. Around 6000 BCE, handmade pottery also began. ओके, तो हैंडमेड पॉटरी के एविडेंस और ऑर्नामेंट्स के एविडेंस. ऑर्नामेंट्स किस चीज़ के बनाए थे, बीड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड सी शेल्स. ओके, तो ऐसे ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं मेहरगढ़ साइट से, और पॉटरी के एविडेंस मिले हैं, डोमेस्टिकेशन के, फार्मिंग के, सेटलमेंट के, ये सारे एविडेंस मिले हैं. ओके, और प्रूफ ऑफ ट्रेड के भी मिले हैं, ट्रेडिंग के भी एविडेंस मिले हैं. Second site is Burzahom. Okay, it is Burzahom. It is located in Kashmir of India. ठीक है, कश्मीर में है, और टाइम पीरियड है 3000 BCE. तो जो भी एविडेंस है वो 3000 BCE के एविडेंस मिले हैं. ओके, फीचर्स क्या क्या है, एविडेंस ऐसे मिले हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ बिल्डिंग मड हाउसेस,
and presence of burial grounds. ठीक है, mud houses around 2000 BCE and burial grounds यानी कि जो हम बोलते हैं शमशान. ठीक है, तो शमशान ऐसे ग्राउंड्स के जहाँ पर उन्होंने अपने एंसेस्टर्स को भी बरी किया हुआ था. जो डेड हो जाता था उसको वो बरी करते थे. ओके, दे बरीड द डेड इन दी अर्न्स. ओके, तो ऐसे पॉट्स, बड़े बड़े बहुत बड़ी साइज के पॉट्स होते थे, उसमें वो लोग उसको मैन को डाल देते थे और उसके बाजू में फूड के भी पॉट्स रखते थे. ओके, सो पॉटरी डिस्कवर्ड एट द एक्सकेवेशन साइट एट बुर्जाहोम. ओके, एंड दे ऑल्सो हैड बरियल ग्राउंड्स फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी वो बरी करते थे अगर वो मर जाए तो. ओके, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स वर ऑल्सो यूज्ड मेनली. पॉलिश्ड स्टोन टूल्स के भी एविडेंस मिले हैं, बोन टूल्स के भी एविडेंस मिले हैं और हरपुन्स के भी. हरपुन्स, फिर एरो हेड्स, डैगर्स, स्पीयर हेड, इन सब के एविडेंस मिले. ये सारे वेपन्स और टूल्स है. ओके, हैंडमेड पॉट्स इन कलर एज ग्रे, रेड, ब्राउन हैव बीन डिस्कवर्ड. तो जो भी पॉट्स थे वो ग्रे, रेड, ब्राउन कलर के वो लोग बनाते थे, उसके एविडेंस भी मिले हैं. यू कैन सी इन दिस इमेज. ओके, तो वो बरी भी करते थे, उसके अलावा ऐसे पॉट से वो मल्टीपर्पज के लिए यूज करते थे. ओके, Okay children, I hope you understood this topics. You have to read this chapter from your textbook and try to solve the exercise. Okay children, I am going to ask questions in the live class. Okay children, bye.